Hello, everyone. I welcome you to this episode where we have a very special guest with us tonight. Joining us is Kiran from Karachi, and she's going to share her story of resilience, of walking this path alone, this difficult journey after losing her husband. So let us all welcome her in this episode. Hello, Kiran. How are you? Hi Meher, I'm fine. How are you? I'm good. I'm good. It's good having you here, Kiran. So, can you start by giving a little introduction about yourself? Okay, so I am currently working as an HR manager for a strategic government organization. I've got two children. My daughter is 14 years old, and my son is around 10 years old. And उसके अलावा बस I work and I spend time with my kids. That's what life is mostly about. So, Kiran, what has life been like before and after the loss? A little bit before we delve into further questions. I think that I would like to begin with. Me and Hassan, we met in university. Mhm. We were 18 years old when we first met. And for him, it was probably, not probably, it was actually love at first sight. Mhm. He was like, this is the person that I would like to spend the rest of my life with. And I was not that sure. Besides, I belong to the kind of family jahan par I don't think that it was such a favored idea person ki shadi university se karna and everything. But anyway, 4 years passed, we were good friends, and things happened. And um, जब फाइनल ईयर खत्म हुआ और रिश्तों की बात होना शुरू हुई, तो he ended up coming to my place, and my parents obviously, they realized that we both are good friends, and he's very much interested in me, so they said yes. And I guess probably that was the best thing that happened to me in my life. So we got married right out of university in 2010. Mhm. He had started working with a private firm, and I had started my first job. और हम दोनों बिल्कुल मतलब we both came from very humble backgrounds, तो स्क्रैच से स्टार्ट किया था सब कुछ. सो bus life was just amazing, even though we didn't have a lot of money and we didn't have a car. I mean, when I got married, he didn't even own a car. And but being together was everything. I mean, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोगों के पास कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं या लोग क्या कर रहे हैं, just because we both were very happy with each other. So then his career path was very, very, very nice. Mashallah, say he was a star. He started from PNG and then he went into Unilever. जो उसकी last job थी, that was in Unilever, and then Unilever से छोड़ के he had only just started as the country head for a research agency, Millward Brown, in Pakistan. And that was in 2017. We had been married for 7 years by then. Mhm. हमारे दो बच्चे थे उस वक्त तक. My daughter was 6 and my son was 2 years old. So बस one fine day, जैसे कि चीजों ने होना होता है, they happen. 23rd of September को we were supposed to visit some family, and हम गए हैं वहां. जब हम वहां से वापस निकले हैं, तो there were two, I don't know, साइड पे से आए दो चोर थे, and they had a gun in their hand. And Hassan always used to tell me, क्योंकि हम दोनों ड्राइव करते थे, तो ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि कोई आए, कभी कोई ऐसी चीज हो और तुम अकेली हो, तो जस्ट साइड पे होके निकल जाना. तो एंड आई टोल्ड हिम कि हाँ, कोशिश ऑब्वियसली बंदा यही करता है. तो उस दिन हमारे साथ गाड़ी में
मैं थी, हसन था, और पीछे जो है हसन की मदर थी, हसन की पुप्पो थी, and both my kids were with us in the car. And those dacoits, they came from my side and they tried to come in front of us. So because we were with family, because he was with family, I know, what was going through his head. So the only thing he did was thoda sa left turn liya, and he tried to run, like speed up the car. By that time वो लोग क्रॉस करके ड्राइवर साइड पे आ चुके थे. So they just fired one shot, and his hand was on the steering wheel like this. तो वो जो steering wheel पे hand था ना, तो यहाँ से the bullet came in from the window. It went inside from under his shoulder, and it punctured his heart, and he died probably within 5 seconds. And I had no idea. I didn't even, because he did not say a single word. So I didn't know कि क्या हुआ है. तो मैं उसको बोलती रही कि हसन तुम्हें कहीं लगी है, हसन इज समथिंग रॉन्ग, बट ही डिडंट से एनीथिंग until I heard him breathing his last. उसके बाद जो कुछ भी हुआ, I just, let's not get into the detail of that, because this will then become a very harrowing episode. You can continue however you want to continue because trust me, I am so, so sorry you had to experience something like this. And obviously, none of us can imagine the horror and the shock of what happened and how things went down. And I'm so sorry. I really am out of words. I'm really am out of words. And please continue. And Hassan उस वक्त नई जॉब स्टार्ट की थी, and we were so happy in our lives, and we were the power couple. मतलब घूमने जाते थे, we used to do international trips. हमने शायद पूरा इन 7 सालों में that we were together, we both loved to travel. तो हमने पूरा पाकिस्तान साथ देखा हुआ था. एक हुंजा देखना रह गया था, उसको बहुत शौक था अताबाद लेक जाने का, हुंजा जाने का. वो हुंजा हमारा देखना रह गया था. सो एनीवे, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई बीमार हो तो शायद आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि यार ये बीमार है, 2-3 महीने से चल रहा है एंड एवरीथिंग. बट विद हसन तो इट वाज लाइक फॉर डेज आई कुड नॉट forget the way he went out of the house and never came back. And मैं बस, I remember that उस रात, ये शायद रात 9:30 की बात है, 3rd Muharram and the 23rd of September. 9:30 की बात है, हम कोई अराउंड 1 बजे घर पहुंचे हैं. आफ्टर एवरीथिंग, आफ्टर his body went to ED and everything, सब कुछ करवाने के बाद. And I just sat there till the next morning, and I took a picture of his and I sat there, and मुझे नहीं पता था लोग आ रहे थे, जा रहे थे. The only thing I said to my brother at the hospital was कि तुम अम्मा अब्बा को मत बताना, because अम्मा अब्बा मर जाएंगे. At that point of time I was, मुझे बस, the only thing that I was scared of was कि my parents are going to die. I remember that उसकी तदफीन के बाद शायद 2 दिन बाद मैं सोयूंगी, probably सोने के लिए लेटी होंगी. I had not slept in like 48 hours, more than 48 hours. मैं लेटती थी, and I would hear a gunshot and I would wake up screaming. तो बस मतलब it has been now almost 8 years, and शायद this is the first time I'm ever talking about this thing on a platform like this. There are people uh, who know this story, but अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद मैं कभी किसी से कह नहीं पाई.
द डेज वी वेंट थ्रू। मुझे मेरा छोटा बेटा वॉज ओनली 2 years ओल्ड। मुझे नहीं याद कि वो मैंने और हसन ने उसका मॉन्टेसरी में एडमिशन करा दिया था। बस जैसे आप 2 साल में एडमिशन कराते हैं, 2.5 साल में बच्चा जाना शुरू करता है। तो वाइल आई वॉज इन माई इद्दत, मुझे नहीं याद कि बच्चे खाना क्या खाते थे या मैं खाना क्या खाती थी, या जो है मेरी बेटी की पढ़ाई। माई बेटी हैड जस्ट स्टार्टेड गोइंग इन टू क्लास 1 एट दैट टाइम। तो मेरी बेटी को कौन पढ़ा रहा है, कौन नहीं पढ़ा रहा, मुझे आई बेसिकली डोंट, आई इवन डोंट रिमेम्बर। मुझे बहुत सालों बाद याद आया कि दैट नाइट व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, मेरा जो बेटा था हसनैन, ही वाज, वो मेरी गोद में था। तो जब मैं गाड़ी से उतरी हूँ और मैं हसन को किसी और की गाड़ी में डाल के लेके जाने लगी, सो आई हैंडेड ओवर दैट 2 year old baby to somebody random who had gathered over there, and I don't have any memory or recollection of the fact। मैंने वो बच्चा उसको थमाया और मैं हसन के साथ हॉस्पिटल चली गई। अम, बाद में कोई वो आदमी आया और उसने आके हसन की मदर को मेरा बेटा दिया और कहा कि वो जो लड़की गई है उन्हें हॉस्पिटल लेके, शी हैज लेफ्ट दिस बेबी विद मी। तो ये मेमोरी मुझे एक दिन बहुत सालों बाद याद आई कि मैंने छोटे बच्चे के साथ किया क्या था। अच्छा, माय फादर वाज वेरी सिक फ्रॉम मेनी इयर्स एंड ही स्टिल इज वेरी सिक। तो मैं और हसन जब भी उनसे रिलेटेड बात करते थे ना, या डेथ से रिलेटेड बात करते थे, तो मैं उसको यही कहती थी कि हसन, आई कांट सी यू डाइंग, लाइक मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे बगैर जिंदा रहूंगी। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू गो फर्स्ट, बिकॉज अल्लाह ताला डजंट पुट अ पर्सन थ्रू दैट काइंड ऑफ पेन। सो आई डोंट थिंक दैट आई हैव द कैपेसिटी। और जब भी मेरे फादर की उसकी बात होती थी ना, तो आई यूज टू थिंक कि यार कोई बात नहीं है, माँ बाप ने तो जाना होता है एक वक्त पे, एंड ही इज इन सो मच तकलीफ, एंड देन एज लॉन्ग एज आई हैव हसन, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हसन विल टेक केयर ऑफ मी। तो 2017 में देयर वाज अ, वी हैड प्लान्ड अ ट्रिप। अल्लाह ताला ने ना उसकी सारी चीजें उसके लिए ठीक की थी। तो हमने एक फैमिली ट्रिप प्लान किया था जिसमें हिज मदर, his sister and her husband और मैं और हम सब, we as a family, we went to Kashmir and we spent time together। तो आई रिमेम्बर इट सो वेल कि जब हम वो ट्रिप पे जा रहे थे ना, तो मैंने हसन को ये कहा कि हसन तुम, मैं इस्लामाबाद तक तो बहुत होके आ चुकी हूँ, तो व्हाई डोंट यू गो अहेड विथ योर मदर एंड सिस्टर एंड एवरीबडी, मैं 2 दिन बाद ज्वाइन कर लूंगी, बिकॉज माई फादर इज वेरी सिक एंड आई एम जस्ट अफ्रेड कि पीछे कुछ हो ना जाए। Mhm. तो उसने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, यू जॉइन मी 2 days लेटर। एंड बस हम उस ट्रिप से, दिस ट्रिप वाज इन जुलाई, एंड हम उस ट्रिप से वापस आए, एंड I lost Hassan in September, and I could never in my worst dreams ever think कि मैं I would lose this person. He was everything. He was my strength. He was my peace. He was my friend. He was, मतलब he was everything. As long as he was there, मुझे कभी किसी और की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो बट शायद अल्लाह ताला आजमाते वहीं से हैं जहां से बेशक। आजमाई सबसे ज्यादा फील होती है। बेशक। जो छोटी मोटी आजमाइश होती है ना, वो तो हम दोनों को पता ही नहीं चलती थी। हम लोग हंसते खेलते निकल जाते थे उससे, बिल्कुल। कि अगर लेट से जी के कभी पैसों की आजमाइश, किसी और चीज की आजमाइश, कोई फैमिली में प्रॉब्लम होगी, इट वाज नो फॉर द बोथ ऑफ अस। तो लेकिन फिर अल्लाह ताला आते वहीं से हैं जहाँ से हाँ सबसे मुश्किल से होता है। द डेज आफ्टर हिम, आई डोंट हैव मच मेमोरी ऑफ दोज, बट द ओनली थिंग आई रिमेम्बर इज कि मैं रोती रहती थी और मैं सिर्फ कुरान पढ़ती रहती थी और उसको बख्शती रहती थी। एंड मेरा बेटा जो था, ही वाज टू स्मॉल, एंड एंड एवरी डे अराउंड मगरिब, जब उसके घर आने का टाइम होता था, तो बेल बजती थी ना, तो ही वुड कम रनिंग टू मी, और वो मुझे भाग के आके कहता था, मामा डैडी आए, दरवाजा खोलूं। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक,
फिर मैं जो रोना शुरू करती थी तो फिर मैं चुप ही नहीं होती थी, एंड देन फॉर डेज दिस kept going on, and I had, and the only thing I would tell that 2 year old child was कि बेटा daddy is not going to come anymore, daddy is not going to come anymore. तो मुझे नहीं पता कि कैसे, बट मेरे बच्चों को अल्लाह ताला ने बहुत 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 सब्र दिया. My kids, अच्छा, my daughter was in the car. She was 6 years old then. During my iddat period, I then took her to psychiatrists because मुझे ये डर था कि ये बच्ची ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, तो I don't know how is she going to live with it, how is she going to cope up with the situation, and the child, that she didn't even say anything to me, like हम बात भी करते थे तो वो बात नहीं हो पाती थी, वो मुझसे कुछ नहीं कहती थी, because the moment we would start talking about it, I would be crying so bad कि वो शायद मैं इसमें अपने आप को भी थोड़ा बहुत ब्लेम करती हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे मुझे आई wasn't prepared for what happened to me. तो आई यूज टू टेक हर टू साइकेट्रिस्ट, फिर यही हुआ कि वो डॉक्टर्स मुझे ये कहने लगे आखान में कि it is better that you talk to your own child when you are in a better situation, because Bachi doesn't know how to convey her feelings to us at least. So अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी आसानी थी मेरे लिए. वो ये थी दैट आई वाज अ वर्किंग वुमन, एंड मुझे कभी जिंदगी में फाइनेंशियल इशू नहीं हुआ हसन के बाद भी. सही, ऑब्वियसली आप एक ह्यूज डेंट पड़ता है कि मतलब 2 सैलरी से आप एक सैलरी पे मूव कर जाएं, बट अदर देन दैट मेरा घर चलता रहा, मेरे बच्चों की फीसें चलती रहीं. माय पेरेंट्स देन मेड, उनके घर के ऊपर जगह थी तो उन्होंने वहां पर एक पोर्शन बना दिया था मेरे लिए, where I moved in and where I'm still living. So and the day after my death, I moved into this house. और बस उसके बाद से ऑफिस जाना शुरू कर दिया था. आई रियलाइज दैट हमारी सोसाइटी में और हमारे कल्चर में पीपल डोंट नो They don't. व्हाट टू से टू somebody who's grieving. और मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगी, बट लाइक माय ओन ब्रदर, वन डे, and he doesn't even know. I'm so sure he did not say it in the wrong sense, Of course. but I'm the one who's grieving, I'm the one who's left behind, and he tells me कि हसन बहुत अच्छा आदमी था, उसके साथ बहुत बुरी हुई. मैंने कहा हाँ, बहुत बुरा हुआ, ऑब्वियसली बहुत बुरा हुआ, बट फॉर हिम आई सर्वाइव्ड, सो आई वाज ओके. एंड आई वाज लाइक, don't you all see me, what I am going through? I've lost everything. I was the kind of person who, इसका मियाँ सब कुछ था वाली जो नहीं होती, who's a husband's girl, उसको जो है वो बीमारी पे भी मियाँ चाहिए और परेशान हो तो भी मियाँ चाहिए. तो मुझे ऐसा होता था कि मतलब हाउ कैन पीपल नॉट सी. माय मदर इन लॉ बेचारी माशाल्लाह, शी वाज द ओनली वन, शी वाज द वन हु यूज्ड टू थिंक कि ये किरण और हसन जो है इनका तो गुजारा ही नहीं होता था एक दूसरे के बगैर, इसका क्या होगा. फिर एनीवे, फिर उसके डेथ के विद इन अ मंथ आई सपोज आई लॉस्ट 10-12 kgs ऑफ वेट. ऑफिस स्टार्ट हो गया तो पूरी दुनिया को लगने लगा दैट आई एम ओके, एंड इनसाइड ओनली आई न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन. मैं रात को सोने लेटती थी और चीखती भी उठती थी. एंड वो इंसान सोचता है, वो इंसान टीवी ड्रामों में और फिल्मों में देखता है ना कि वो लड़की ऐसे बेड से उठ के डर के बैठ जाती है, तो हम सोचते हैं कि ऐसे रियल लाइफ में तो नहीं होता, Yeah. बट वो मेरे साथ रियल लाइफ में होता था. Mm. मतलब either I would just wake up screaming or I would just wake up डर के.
फिर the stress was so much, it was so much, and because probably मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं शायद अपने पेरेंट्स को कह नहीं सकती थी, वो लोग बीमार थे, और मुझे समझ नहीं आता था कि हसन के अलावा कौन है दुनिया में जिसको जाके अपना दुख बयान करूं. I ended up in the ER twice or thrice, जहाँ जो है वो my heart was not functioning properly because of the stress. तो उस वक्त फिर जी टेस्ट हुए और दवाइयाँ दी गई, और फिर एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी स्ट्रेस मेडिसिन दी गई, चला फिर खैर. एनीवे, यू नो, लाइफ गोज ऑन. I have not learned a lesson from this. I still think it has been so many years. The only thing, you know, I have figured out in all of these years is कि आपने सब्र करना है, और जो आपने सब्र करना है ना, वो आपको कोई और इंसान नहीं करवा सकता. See, I see. So, Nobody else can help you achieve that sabr. The only place that probably you can go to is Allah Ta'ala. yeah, And वो एक मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स को फिर सुनना शुरू किया, बिकॉज यू नो देयर वर थिंग्स दैट आई कुड नॉट फाइंड आंसर्स टू, of course. and there was a pain, there was an ache which was never ending. तो उसमें एक डॉक्टर इसरार की एक वीडियो थी, उसमें ही यूज्ड टू से कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया जब आजमाइश के लिए बनाई है ना, तो फिर इंसान को सब्र करना है. Like you don't have an option. Years I stayed in therapy. I went to different psychiatrists. कराची में psychiatrists भी योग और मतलब some people were just, you know, I don't know doing what with their practice. Yeah, और बहुत सालों गुजर के मुझे ये पता चला कि you have to learn to do that sabr on your own. दुनिया में शायद कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता. mm, और आप अपने लिए ये कर सकते हैं कि आप मे बी reach out to Allah Ta'ala and ask Him to help you pass that stage, because at least इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपकी हेल्प कर सके. very true. What was the hardest part of adjusting to life without your partner, without your husband? Or maybe Loneliness. loneliness, of course. Like, what do you do when you're feeling lonely? Have you been able to crack the code? um no. Yeah. Honestly, I would say कि आप अपने लिए कोई एक्टिविटी ढूंढ लें. Mm, लेट्स से वॉक करना ढूंढ लें. mm, मैं आई एम नॉट अ टीवी और मोबाइल पर्सन, मैं बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखती, right. तो इसलिए मेरा उसमें दिल नहीं लगता. अगर कोई सीजन देखना शुरू भी कर दिया, अगर कोई ड्रामा देखना शुरू भी कर दिया, तो उसकी एक लिमिट है कि मतलब Okay. 1 घंटा दिन में टीवी देख लूंगी, इससे ज्यादा मैं टीवी नहीं देख सकती. यू हैव टू लर्न टू बी ओके Mm, विथ योर ओन सेल्फ. यू नो, मे बी रीड बुक्स. मैंने जो बहुत ज्यादा मुझे एक पीस मिला, या जो बहुत ज्यादा मैंने अपने आप को समझाया, वो मैं रिलीजियस वीडियोस देखती थी. mm, अपने आप को मोटिवेट करने का और अपने आप को सही रखने का ना, ये जो प्रोसेस है, दिस इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, बिकॉज वंस यू गो थ्रू सच अ ट्रॉमा, it keeps coming back. mm, You know, you can't be, some days it's just like you go and buy a coffee for yourself and you're buying coffee for one and not for two, but that is enough, that is enough to end everything for you. So jo, when you go through a trauma of losing a partner na, तो वो one time नहीं है. You're going through it every day. yeah, So many years later, you know, I figured out that if I have to move on every day, then the motivation also has to come every day. yeah, आपको रोज अपने लिए ऐसा कुछ करना है जो आपको पॉजिटिविटी की रास्ते पे चलाए. very true. I have a lot of health issues now.
I take medicines for, I mean, I don't blame myself because the way I lost Hassan, मतलब मैं बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी, तो मेरे लिए मुझसे कोप अप नहीं किया गया। मैं बहुत ओपनली इस चीज को कहती हूँ कि मुझसे नहीं कोप अप किया गया। तो मैंने अपना बहुत सारा नुकसान करके, अपनी हेल्थ का नुकसान करके, नाउ आई एम ऑन लाइक 24 टैबलेट्स अ डे एवरी डे वाली सिचुएशन फॉर डिफरेंट रीजंस। जो हो गया ना, उसने वैसे ही होना था। Mhm. एंड no matter what you do with your life, that is not going to change. You can choose to suffer for the rest of your life, Yeah. or you can choose to, live with it. देखिए, जिंदगी ने ना चलते रहना है, और Mm. अपने 8 साल बाद और 10 साल बाद रियलाइज करना है कि यार फला चीज मिस हो गई। Mm. यू नो एक टाइम आएगा when you will be able to move on, because that's how Allah Ta'ala has made human beings. Absolutely. मैं आज तक नहीं कहती that I've moved on, and I don't know how many more years it will take me to be able to say this. But हाँ, मैं ये जरूर कहती हूँ कि um, maybe I could have taken care of my health a little better, Mhm. because जितनी भी मैंने ख्वाहिश कर ली कि Mm. मैं हसन के साथ मर जाती, या जितनी भी मैंने दुआएं कर ली कि मैं हसन के बाद मर गई होती, मैंने वो मरना नहीं था, Yeah. वो होना नहीं था। तो वो करके, और वो and I don't blame anyone for it, because for not telling me how to do it, because मेरे आगे पीछे कोई ऐसा था ही नहीं जो मेरी सिचुएशन से गुजरा होता। तो इसलिए people won't be able to tell you what is the right thing for you to do at that point of time. Mm. बट आप अपने राइट चीज सिर्फ इस तरह मेजर करें कि जिंदगी ने गुजरना है। बिल्कुल 8 साल बाद भी ये जिंदगी यहीं होगी। बिल्कुल ये सही। बच्चे बड़े हो गए होंगे, इनकी पढ़ाई भी ऐसे ही चल रही होगी, इनके स्कूल्स भी चल रहे होंगे। If you are ruining your life at that point of time, which is meant to happen, Yeah. maybe reduce that time of ruining your life. मैंने बहुत सालों अपनी जिंदगी, सबसे ज्यादा जो मुझे फील होता है ना, मैंने अपनी हेल्थ में पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया। ये आई हैव ऑल डाइड हेयर, माई हेयर ऑल टर्न वाइट, Mhm. like within 6 months of his death, my hair all turned white. Mhm. अच्छा, लोग मुझे ना बहुत सारी बातें कहते थे कि तुम शहीद की बीवी हो, वाई डिस्पेयर, उसको शहादत का दर्जा मिला क्योंकि वो अपनी फैमिली को बचाते हुए गया, Uh-huh. मरा। Mhm. तो ये अल्लाह ताला ने ये कहा है कि तुम जो है वो अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मैं किसी इंसान पे वो बोझ नहीं डालता जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड ना हो। एंड आई यूज्ड टू थिंक, ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं लोग मुझसे, मुझे Excellent. क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई मीन, टू मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट यूज्ड टू फील के ये लोग मुझे ये ताना दे रहे हैं कि आई डिड नॉट लव हसन इनफ, एंड दैट इज व्हाई अल्लाह ताला टुक हिम अवे, बिकॉज आई कैन लिव विद इट। Yeah. हमें हमारी दुनिया ने नहीं सिखाया होता कि Mm. हमने लॉस के साथ या ट्रेजेडी के साथ कैसे डील करना है। Mm. When my parents raised me up, you know, they could not have predicted it in their worst nightmares कि उनकी इकलौती नाजों से पली बेटी would go through something like this. Mm. And basically, that is where the problem lies. Because I was never, भाई किसने गारंटी दी है जिंदगी की? Mhm. अल्लाह ताला की चीज है, अल्लाह ताला can take it away in like a second. Yeah. क्यों मैंने ये सोचा कि हसन सारी जिंदगी रहेगा? Mm. क्यों मैंने ये सोचा कि he will always be there to take care of me? Mm. ये मेरे मेंटालिटी का प्रॉब्लम था, ये और किसी का प्रॉब्लम नहीं था। Mm. I was the one who was not given the right guidance, Mm. the right ingredients of how to live your life. Mm. So, when I raise up my children now, I
literally tell them कि this is how life is and you have to live. बिकॉज जब तक तुम्हारी अपनी जिंदगी है ना तो तुम्हें गुजारा करना है, तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसको अच्छे से गुजारोगे या बुरे से गुजारोगे. People will come in your life and people will go. There will one day there will come a day when I will also go. Because अब हम तीन ही लोग हैं, we are a very close knit family. हम तीनों बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के. So my daughter is almost like, वो मुझसे टॉल हो गई है तो वो शी इज लाइक अ फ्रेंड टू मी. तो वो फिर उसके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ. बट आई टेल हर दिस कि मीरा, you have to understand बेटा that parents never stay. जब हसन की रहती ना तो आई हैड नो आइडिया कि क्या पेपर वर्क कराना है, यू नो कौन सी नॉमिनेशंस फिल हुई होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्या हुआ होता है क्या नहीं होता. आई हैड नो आइडिया. बट माई 14-year-old knows everything now. शी नोज कि जी ये वाला नॉमिनेशन फॉर्म यूं फिल किया जाता है. एंड आई थिंक एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आगे पीछे लोगों को ये चीज सिखाएं. बिकॉज यू नेवर नो कि कल किसकी जिंदगी कितनी है. Absolutely. वी कैन नेवर गेस इट. ठीक है. तो एंड दिस इज हाउ अल्लाह ताला हैज मेड लाइफ. वो तमाम लोग जो किसी गम से, दुख से, किसी के चले जाने की वजह से गमज़दा हैं, what advice would you give to someone, to people who have lost a loved one and who are struggling with grief? अच्छा, सबसे पहले तो ना ये किसी की बात नहीं सुननी है कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है. इट टेक्स टाइम वाली बात. आई डोंट बिलीव इन दैट. Mhm. डोंट बिलीव दैट वक्त के साथ ही ठीक हो जाएगा. Mhm. द ओनली थिंग दैट विल हैपन इज कि वक्त के साथ आप उसके साथ रहने के आदी हो जाएंगे. उस कमी के साथ, उस ग्रीफ के साथ आप ना रहने के आदी हो जाएंगे. um, I what I believe is grief is a lifelong journey, and beat anybody, like even if it is your parents, अगर एक ईद आएगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको याद ना आए कि अम्मा अब्बा होते थे तो इस तरह होता था. तो it's a lifelong journey. What I would suggest people is to not rush to get out of it. वो तमाम लोग जो किसी गम से, दुख से, तो अगर if you have lost your spouse and you're waiting to feel okay foreign, say you're not going to feel okay foreign. Maybe you're not going to feel okay even in years. uh, you have to shift to a new normal, and that new normal is you being this other person who is who has to manage things on their own, yeah, who has to live with this kind of accident or incidents in their life. तो मैं एटलीस्ट मैंने ग्रीफ को अब तक जितना समझा है ना, तो वो मुझे ये लगता है कि कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बुरे होंगे. when there are hard days, um, you have two options: give yourself a break, लेट के सो जाएं घर पे, या वर्क हार्डर. एंड देयर विल बी गुड डेज. बट ऐसा नहीं हो सकता कि आप कभी भी, मतलब जिंदगी में एक ऐसा दिन आए कि यू wake up and you're a new person and you've forgotten everything. ऐसा नहीं होगा कभी भी. So don't even expect that to happen. जब लोग ये कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा वाली बात, और वक्त एक बहुत बड़ा मरहम है, तो आई बिलीव कि हम इंसानों ने बहुत सारी चीजें डेवलप की हुई हैं अपने आप को दिलासा देने के लिए. तो दिस इज दैट काइंड ऑफ अ दिलासा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. चीजें ठीक नहीं होती. यू लर्न टू लिव विद इट. यू फाइंड द न्यू नॉर्मल. I sometimes think that there are days, on good days, I think that I have a perfect life with my kids and I don't need anybody in my life. Or maybe um, alhamdulillah that my kids have been able to go to the best schools and everything. तो उसकी absence से at least हमारी financial situation पे फर्क नहीं पड़ा. So there are good days and there are bad days, but you have to live with that.
थैंक यू सो मच किरण। आई एम श्योर आपकी बात सुन के बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, जो इससे मिलती जुलती किसी सिचुएशन से गुजरे होंगे, कम से कम दे कैन एटलीस्ट मे बी make sense of what's going on, what their life is now, what it feels like to be having gone through such a tragedy. So thank you so much again for sharing your journey, for showing up, and all the best to you Thank you so and much for your life. calling me, Meher. You're welcome. It has been a pleasure, Kiran. Thank you so much. As we close today's video, let's take a moment to honor the courage it takes to speak about grief, to remember, and to rebuild. Grief is deeply personal, yet universally felt. And by sharing these stories, we create a space for healing, not just for ourselves, but for others who may be struggling in silence. If Kiran's story touched you, I encourage you to keep the conversation going. Reach out, share your thoughts, and remember, healing happens in connection. Thank you for being here. I'll see you in the next episode. And if this episode resonated with you, please like, subscribe, and share this video. Thank you. Until next time, take good care.